कैप्टन सरकार संगरूर के लहरागागा से आई ये तस्वीरें पंजाब सरकार के नशा मुक्ति आंदोलन की पोल खोल रही हैं। नशा मुक्ति केंद्र पर नशा छोड़ने के लिए दवाई ही नहीं मिल रही। लहरागागा के सरकारी अस्पताल में दिख रहे लोग नशा छोड़ने के लिए अस्पताल आते हैं। इन लोगों में कई बुजुर्ग भी शामिल हैं। सभी लोग किसी न किसी प्रकार का नशा करने के आदी हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की नशा छोड़ने की अपील के बाद इन्होंने नशा छोड़ने का मन बनाया और इलाज कराने के लिए अस्पताल आए। लेकिन यहाँ पर अब उनको निराशा हाथ लग रही है। सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में कई महीनों से यही हालात है। नशे के आदी ये लोग दवाओं के लिए तरस रहे हैं। पहले सरकार की तरफ से इनका इलाज करने के लिए कहा गया और अब अस्पताल में दवाई ही नहीं है। मंगलवार को सरकारी लापरवाही से नाराज करीब 250 लोगों ने जमकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोसा। इनका कहना है कि कैप्टन ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। इलाज के लिए आए नशे के आदी मरीजों ने बताया कि इन्हें रोज अस्पताल में सुबह से शाम तक बैठना पड़ता है, तब जाकर एक दिन की दवाई दी जाती है। इनकी मांग है कि कम से कम मरीजों को एक हफ्ते की दवाई दी जाए। हॉस्पिटल च लाया जी, कैप्टन ने ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, इसकी नशा घटाओ, नशा छड्डो। पहला छडाउंदा सी ਇਹ भी 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ नशा मुक्त कर दूं। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਦਵਾਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਭਾੜਾ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰੋਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਦੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ, ਆਪ ਬੀਜ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ 1 ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ CMO ਜਾਣੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਤਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਟੂਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਰੇ, ਸਹੀ ਡੈਰੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਖੜਦਾ ਕੱਲਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਖੜਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੜਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਖੜਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਰਤਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ समय सिर नहीं यह चीज मिलूगी, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। उधर सरकारी अस्पताल ने भी दवाई की कमी की बात कबूल की है। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में करीब 300 नशे के मरीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इतने मरीजों के लिए अस्पताल में दवाई कम है। रेगुलर ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 8-900 ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ 8-900 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 250 ਤੋਂ 300 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8-900 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹੋਮ ਡੋਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਲਿਖੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ कमी है। नशा मुक्ति केंद्र पर दवाई की किल्लत के मामले में आप और अकाली दल ने पंजाब सरकार पर हमला किया है। आम आदमी पार्टी ने जहां इसे पंजाब सरकार की विफलता बताया, वहीं अकाली दल का कहना है कि नशा मुक्ति केंद्रों में भेजी जाने वाली दवाओं को लेकर बड़ा स्कैम हो रहा है। अकाली नेता दलजीत चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार स्कैमों की सरकार बन चुकी है। आज कच्चा चिट्ठा जो है वो खुल चुका है। आज हालात ये बने हुए हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स में नशा छुड़ाऊ दवाइयाँ जो हैं वो मिल नहीं रही।
दावे किए जाते हैं कि लाखों लोगों को हर रोज दवाई दी जाती है नशा छोड़ने के लिए। सरकारी हॉस्पिटल्स में वो दवाइयां ना मिलके बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट सेंटर्स में ब्लैक के ऊपर मिल रही। मैं समझता हूँ कि इससे एक और नया माफिया जन्म लेता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को आज इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये लोग नशा छोड़ने लगे हुए हैं। अगर उनको इस तरीके से अभी टाइमली ना संभाला गया, उनको फ्री में दवाइयां टेबलेट्स ना दी गई नशा छोड़ने की, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो दोबारा नशा करना शुरू कर दें। 1 लाख जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो लॉकडाउन के तौर पे नए रजिस्टर हुए, जो पहले ले रहे थे ड्रग्स वो अलग है। लेकिन 1 लाख का आंकड़ा उन्होंने खुद माना कि 1 लाख सारे डी एडिक्शन सेंटरों में नए एडिक्ट जो हैं वो दर्ज हुए, जो उनकी विड्रॉल सिम्टम आ रहे थे, जो कोई ना कोई नशा ले। और मैंने उसी दिन कहा था कि ये 1 लाख नहीं है, ये 1 लाख वो हैं जो कीमत नहीं चुका पाए, जो घर में डिलीवरी होती थी वो दे नहीं पाते थे, ये वो लोग। एक स्कैम तो हमने पहले भी हमारे एमएलए साहबान में विधानसभा ने कहा था, लेकिन अब तो सारी सरकार ही स्कैम्स की होगी। अब ये स्कैम तो शायद छोटा रह गया, इतने बड़े बड़े स्कैम हो गए। कहीं लिकर का स्कैम हो गया, कहीं रेता का स्कैम हो गया, कहीं राशन का स्कैम हो गया। अब तो स्कैम ही स्कैम है। मामले पर सफाई देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता राजकुमार वेरका ने कहा है कि अगर इस तरह का कोई स्कैम हुआ है तो पंजाब सरकार इसकी जांच कराएगी और दवाओं की कमी को जल्द दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। एक तो विरोधियों का जो हमारे ऊपर इल्जाम था, उसकी पोल तो वो खुद ही लोग खोल रहे हैं कि नशा तो मिल ही नहीं रहा, नशे पे काबू पाया हुआ है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके आदी हैं, उनको छुड़ाने में अगर उनको कम दवाई मिल रही है तो उसकी भी जांच करेंगे और वहाँ के सीएमओ से भी बात करेंगे और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से भी बात करेंगे कि अगर उनको सचमुच में दवाई की ज़रूरत है, उनको ज़रूर उपलब्ध कराई जाएगी। और फिर भी अगर ऐसी बात थी तो हमने जो थे उनके जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं और कार्रवाई करते रहेंगे। और हमारा जीरो टॉलरेंस है, हम लोग ना करप्शन को बर्दाश्त करते हैं, हमारी सरकार ना तो ड्रग को माफ़ करती है और ना ही हम लोग दूसरी चीज़ों को माफ़ करने वाले हैं। पंजाब सरकार नशा छुड़वाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और दवाइयां नशा मुक्ति केंद्रों पर मुहैया कराने के दावे करती है, लेकिन ये खबर पर्दे के पीछे की हकीकत और सरकार के दावों की सच्चाई बताती है। अब देखना होगा कि कब तक दवाओं की कमी को दूर किया जाता है, जिससे नशा छोड़ने का मन बना चुके लोग दोबारा नशे के दलदल में ना फंसें। पंजाब में चुनावों से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावी रैली में गुटखा साहब हाथ में लेकर कसम खाई थी कि सरकार बनते ही नशे की कमर तोड़ देंगे। लेकिन तस्वीर क्या बता रही है कि संगरूर के नशा मुक्ति केंद्र में सैकड़ों की तादाद में नशे के आदी सरकार को सिर्फ इसलिए कोस रहे हैं कि कई महीनों से उन्हें नशा मुक्ति की दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ये तस्वीर सरकार के दावों और वादों की हकीकत बयां कर रही है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, मोहाली।